بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، روئے زمین پر انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس اعلان کے ساتھ ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ رب ذوالجلال نے جب بنی نوع آدم کو زمین پر اپنے نائب کی حیثیت سے بھیجنے کا اعلان فرمایا تو فرشتوں کو بتایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جو کہ اس سے پہلے زمین پر جنات کی فتنہ انگیزی سے آشنا تھے، اس فیصلے پر متعجب تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح انسان بھی زمین پر جھگڑا اور فساد برپا کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسے شخص کو بھیجنے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ قصہ مختصر یہ کہ رب کریم کے فیصلے کے نتیجے میں حضرت انسان کو زمین کی جانب اذن سفر ملا اور اس سیارے پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان کی پہلی اولاد میں حابیل و قابیل دو بیٹوں کے نام ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ قرآن کریم سے پہلے آنے والی الہامی کتب میں بھی مذکور ہے، لہذا کتاب مقدس میں بھی ان کا ذکر کتاب پیدائش کے ضمن میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں آیا ہے۔ کتاب مقدس میں قابیل کو قائن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قابیل یا قائبل حضرت آدم اور حضرت حوا کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ زمین پر پہلا قاتل قابیل ہی تھا۔ قابیل کا پیشہ کاشتکاری تھا اور وہ زمین میں سبزیاں اگاتا تھا۔ حابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا، جنہیں ان کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا۔ پیشے کے لحاظ سے حابیل بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم و حوا کے ہاں جس لڑکے اور لڑکی کی ولادت ایک وقت میں ہوتی، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، بلکہ صبح کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتی اور شام کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی کی صبح والے لڑکے سے۔ قابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونا تھی وہ اس کے معیار کے مطابق خوبصورت نہیں تھی، جس کی وجہ سے حسد اور بغض کے زیر اثر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ چونکہ وہ لڑکی جس کا نام اکثر روایات میں اقلیمیہ بتایا جاتا ہے حابیل کی شریک حیات بننے والی تھی، قرآن کریم میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی جوں کا توں سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ
अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। अल-माइदा आयत नंबर 28। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़की बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 29। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 30। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उससे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं उस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। अल-माइदा आयत नंबर 31। बाज़ रिवायात के मुताबिक हाबील के कत्ल की असल वजह काबिल का नबुव्वत के लिए मुंतखब न होना था। दीगर रवायात में यह भी मिलता है कत्ल किसी औरत की वजह से हुआ। ताहम बाज़ कुरानी मुफक्किरीन ने हाबील और काबिल से मुतल्लिक तहरीर में ऐसी रिवायात को रद्द किया है जिनमें इस कत्ल की वजह किसी औरत को करार दिया गया है। कुरान करीम की मंदरज बाला आयात की रोशनी में साफ पता चलता है कि कत्ल की वजह कुर्बानी का कबूल न होना था। तारीख के उलमा का कहना है कि चूंकि इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही थे तो आपस में निकाह करने के अलावा अफजाइश नस्ल की और कोई सूरत मुमकिन ही न थी। इसलिए कुछ कवानीन बनाने थे ताकि खानदानी निज़ाम फरोग पा सके और माशरा शुतर बेमहार अफराद का मजमुआ न बने, बल्कि एक मुनज़्ज़म और हुदूदो कुयूद का पाबंद आइली निज़ाम राइज हो। इसी दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह इस लड़की से तय किया जिसका नाम रिवायात में लयूदा बताया जाता है। यह हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का अक्लीमिया नामी लड़की से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबिल इस फैसले पर राजी न था। चूंकि अक्लीमिया ज्यादा खूबसूरत थी इसलिए उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। सामईन कराम, रियलिटी एट इन्फो पर आपको हर तरह की तारीखी, साइंसी और इस्लामी मालूमात फराम की जाएंगी। काबिल कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा ये गुमान है तो तुम दोनों रब की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अक्लीमिया का हकदार है। उस दौर में कुर्बानी मकबूल होने की ये अलामत थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गंदम का अंबार लगाया जबकि हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमान से आग लपकी जिसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की गंदम को छोड़ दिया। इस सूरत हाल को देखकर काबिल के दिल में बहुत बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ और वो मौका की तलाश में था कि भाई से इस हार का इंतकाम कैसे ले। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में हाजिरी के लिए मक्का और मुकरमा की जानिब रवाना हुए तो काबिल ने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल न हुई और तू अक्लीमिया का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील की बात का मतलब था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का काम है और वो मुतक्की लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर काबिल मुतक्की होता तो उसकी कुर्बानी कबूल होती। यह खुद उसकी अफ़ाल का नतीजा है, उसमें हाबील का क्या कसूर है। हाबील ने काबिल को समझाया कि खून रेजी फेल बद है,
अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी से डरता हूँ। पहले तूने वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसला को न माना। ये दोनों गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाएंगे। काबिल तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबिल को कत्ल करने के इरादे से बाज ना आया और उसके नफ्से अमारा ने उसे इस इरादे पर राजी कर लिया। चुनाचे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन फिर सोचने लगा कि इस लाश को क्या करे, क्योंकि ये पहली मौत थी। वो जानता न था कि अब मैयत का क्या करे। वो एक मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब लाश छुपाने का कोई तरीका उसकी समझ में न आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन को कुरेद रहा था। वाकया कुछ यूं हुआ कि दो कव्वे आपस में लड़े। उनमें से एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा बच जाने वाले कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन को कुरेद कर गड्ढा खोदा। फिर उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी के अंदर दबा दिया। यह देखकर काबिल को ख्याल आया कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने जमीन खोदकर हाबिल को दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान में कुछ यूं आया है कि तर्जमा, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राजी कर लिया, तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद रहा था, ताकि वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाकया देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं उस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। तो वो पछताने वालों में से हो गया। यह किस्सा बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। इस वाक़े से हमें कई अखलाकी सबक मिलते हैं जिन पर गौर व फिक्र करके हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। सामईन कराम, हसद, कीना और लालच जैसे मनफी जज्बात इंसान के अखलाकी ज़वाल का सबब बनते हैं। नतीजतन वो मायूसी और नाकामी का शिकार हो जाता है। इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि इंसान ने जो सबसे पहले जराइम किए उनमें एक कत्ल भी था, जिसके पीछे हसद का मनफी जज्बा कार फरमा था। हसद ही ने शैतान को रज़ील किया और हसद ही ने दुनिया में काबिल को तबाह किया। मनफी सोच और रवैये कभी भी मुस्बत नताइज नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए। सामईन कराम, मेरी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सामईन कराम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।